Welcome you all to today's English class. Today we'll be studying chapter 2, that is Get Well Soon Grandpa. So the chapter begins. Hi Mike, how are you? I have brought a card for you. Mike बोलता है, Thank you Sammy. I'm feeling better now. My grandma took great care of me. I love her a lot. तब माइक बोलता है कि थैंक यू सैमी, मैं भी बेहतर फील कर रहा हूँ. मेरी दादी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ. तब सैमी बोलती है, योर ग्रैंडमा इज वेरी स्वीट, जस्ट लाइक मीराज ग्रैंड पेरेंट्स. तुम्हारी दादी बहुत प्यारी है, बिल्कुल मीरा के ग्रैंड पेरेंट्स की तरह. तब माइक बोलता है, रियली, आईड लाइक टू हियर मोर अबाउट मीरा एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स. अब हम देखेंगे मीरा की स्टोरी. एज यूजुअल, as soon as Meera woke up, she ran to her grandpa's room. Good morning, grandpa, she said. हर रोज की तरह मीरा आज भी दौड़कर अपने दादाजी के पास गई, फिर उनको गुड मॉर्निंग बोली. Grandpa always woke up at 4 o'clock in the morning. वो रोज सुबह 4 बजे उठा करते थे. Went to the park for a walk and practiced yoga with his friends. वो पार्क जाते थे चल के, फिर वहां अपने दोस्तों के साथ योगा करते थे. He would return at 6 o'clock and bring coconut water for Meera. वो 6 बजे तक वापस आ जाते थे घर और नारियल पानी लाते थे मीरा के लिए. However, this morning it was 7 o'clock and Grandpa was still sleeping. आज तो 7 बज गए थे और दादाजी फिर भी सोए हुए थे. Meera went straight over to him. She touched his forehead. Oh, Grandpa has a fever, she said. I must tell Ma. वो जैसे ही देखी अपने दादाजी के मस्तक पर हाथ रख के कि उनको तो बुखार है, तो वो बोली माँ को बताना चाहिए. She went to find her mother. Her mother was in the kitchen. She was talking to the cook. वो किचन पर गई, वहाँ जहाँ पर उसकी मम्मी थी. वो कुक के साथ बात कर रही थी. महाराज जी, could you please make खिचड़ी for grandpa's lunch? She said. वो उस कुक को बोली, मीरा बोली कि दादाजी के लिए खिचड़ी बना दो प्लीज आज लंच के लिए. I would like to make vegetable soup for him to have now, please. और अभी के लिए वेजिटेबल सूप. He can have the soup first. पहले वो सूप पी ले, उसके बाद खिचड़ी. महाराज जी nodded and started to prepare soup. महाराज जी ने सिर हिलाया और सूप बनाने चले. Just then, Meera's grandma came in. तभी मीरा की दादी आई. She looked anxious. थोड़ी घबराई हुई थी. बेटा, grandpa said he does not feel like eating anything. वो बोली कि बेटा, दादाजी ने कहा कि उनको कुछ खाने का मन नहीं है. He should eat something, otherwise he will not get better. मीरा बोली उनको कुछ खाना चाहिए वरना वो कैसे ठीक होंगे. Grandma, said Meera, clinging to her grandma's waist. Is grandpa not feeling well? I think he has fever. He is going to be all right. Yes, dear, replied her grandmother. Your grandpa has fever. He has caught a cold, but he'll be fine soon. Grandma assured her. Don't worry. मीरा घबराई हुई थी तो उसने अपने दादी से पूछा, दादाजी को तबीयत खराब है, उनको बुखार आया है, सब ठीक हो जाएगा ना? तब दादी ने बोला, हाँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उनको बुखार है, बस थोड़ी जुकाम लगी है, ठीक हो जाएंगे. माँ, I will tend to grandpa's needs. Let me take the soup to him. मीरा said. उसने बोला, माँ, मैं दादाजी का देखभाल करूंगा, उनको जो भी जरूरत होगा मैं पूरा करूंगी और मैं उनके पास अभी सूप लेके जाती हूँ. माँ agreed and when the soup was ready, Meera took it to her grandparents' room. By this time, grandpa had woken up. वो जैसे सूप लेके गई उनके कमरे में तब देखा कि grandpa उठ गए हैं. Grandpa, you'll feel better soon, Meera said. आप जल्दी ठीक हो जाएंगे. I'll take care of you. You need to have this soup so that you can get your strength back. आपको ये सूप लेना होगा ताकि आपको ताकत आए. She dipped the spoon into the soup and served a spoonful to Grandpa. Grandpa smiled. Soon he finished his soup and sank back again. उनका जैसे ही सूप खत्म हुआ, वो वापस लेट गए. Meera asked Grandma about Grandpa's medicines. उसने दादी को उनके दवाई के बारे में पूछा. Grandma arranged the jars on the bedside locker and explained to Meera when she needed to give Grandpa each one. वो समझा दी कि कब किस वक्त दवाई देना है. As Grandpa slept, Meera sang him a sweet lullaby. वो लोरी सुनाने लगी जैसे ही दादाजी सोए. Meera recollected how Grandpa had looked after her when she had caught a cold. फिर मीरा सोचने लगी. She remembered
उसके दादाजी ने उसका कितना ख्याल रखा था जब वो बीमार पड़ी थी। He had been by her side until she got better. वो तब तक उसके साथ थे जब तक वो सुस्त ना हो गई। मीरा and her grandpa shared a very special bond. उन दोनों का एक अनोखा रिश्ता था। He was her best friend. Meera loved spending time with her grandfather. She usually joined him every morning for breakfast during her summer vacation. जब भी मीरा का समर वेकेशन हुआ करता था तब वो और उसके दादाजी दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करते थे। Today she felt sad to see grandpa ill. आज उसको बहुत बुरा लग रहा था दादाजी को बुखार हुआ है देख के। At lunchtime, Meera took khichdi and curd into grandpa's room. She touched grandpa's forehead. He still had a fever. अभी तक उनको बुखार था। She served him khichdi, feeding him herself with a spoon. खुद अपने हाथों से खिला दी। She encouraged him to finish all the khichdi and curd. Then she gave him his medicine and read the newspaper to him. फिर उसने खाना खिलाने के बाद मेडिसिन दिया और न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। ग्रैंडपा स्लेप्ट अगेन। फिर दादाजी सो गए। सिंस ग्रैंडपा इज स्लीपिंग, मीरा थॉट आई शुड मेक अ गेट वेल सून कार्ड फॉर हिम। वो सोचने लगी अभी दादाजी सो ही रहे हैं तो मैं उनके लिए एक कार्ड बनाती हूँ। शी रैन टू हर रूम, ग्रैब्ड अ ड्राइंग शीट एंड हर कलर्स एंड केम बैक टू ग्रैंडपास रूम। वो जल्दी से दौड़ के अपने रूम में गई, एक ड्राइंग पेपर लेके आई, कलर्स लेके आई, फिर अपना काम पे बैठ गई। She sat on the floor and started to make the card for him. She sketched a picture of herself and her grandfather sitting on a bench in the park. She wrote a message inside with a special gold marker and left it on a table near grandpa's bed. वो बहुत सुंदर से स्केच करने लगी अपना और अपने दादाजी का कि दोनों पार्क पे बैठे हैं और वहाँ पे एक मैसेज छोड़ के गई है गोल्ड मार्कर से, और वो दादाजी के पास जो टेबल था वहाँ पे रख दी। By evening, Grandpa was feeling a little better. शाम तक दादाजी थोड़ा ठीक हो गए। His temperature had come down. उनका बुखार उतर गया था। Meera brought tea and toast for him. She saw that Grandpa was reading the card she had made for him. वो देखी कि दादाजी उसका बनाया हुआ कार्ड पढ़ रहे हैं। He had tears in his eyes. वो रो पड़े। She put the tray on the table and hugged him. Just then, Grandma came in. फिर तभी दादी आई। She asked him why he was crying. वो पूछी उनके दादाजी से कि क्यों रो रहे हैं। Grandpa handed her the card and she read the message. Dear Grandpa, you are the best grandpa anyone could have. You are my best friend. I feel sad to see you unwell. It has just been one day and I already miss playing with my best friend and sitting in your lap as you tell me stories. वो एक ब्यूटीफुल सा मैसेज दी कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आज एक ही दिन आप बीमार हो और मैं मिस कर रही हूँ आपके साथ खेलना। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके गोदी में बैठी रहती हूँ और आप मुझे कहानी सुनाते हो। आई प्रे यू गेट वेल सून। आई ऑलवेज बी देयर टू टेक केयर ऑफ यू एंड आई होप यू नेवर गेट सिक अगेन। मैं प्रे करती हूँ कि आप और कभी बीमार ना हो। आई लव यू। एज ग्रैंडमा रेड द मैसेज, she too had tears in her eyes. जैसे ये मैसेज दादी पढ़ी, उनको भी आंखों में आंसू आ गए। She hugged Meera. You are the best granddaughter in the world. तुम सबसे बेस्ट granddaughter हो पूरे दुनिया में, she said. It was a full week before Grandpa got well. During that entire week, Meera did not leave her grandfather's side. पूरा एक हफ्ते तक उसके दादाजी बीमार थे, लेकिन वो उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ी, वहीं पे बैठी रही। When Grandpa was perfectly fine, he took Meera to the ice cream parlor. जब दादाजी ठीक हो गए, वो दोनों मिलकर आइसक्रीम पार्लर गए। They both had huge ice cream sundaes, and this time Meera didn't need to encourage her grandfather to finish his. अब जब वो दोनों दादाजी तो ठीक हो गए थे, फिर वो दोनों गए आइसक्रीम पार्लर, बहुत सारे आइसक्रीम खरीदे। अभी मीरा को बोलना नहीं पड़ा कि ये खत्म कर लो, क्योंकि दोनों बड़े मजे से आइसक्रीम खाए। स्टूडेंट्स, योर चैप्टर हैज एंडेड। डू यू हैव ग्रैंडपेरेंट्स इन योर होम? इफ यस, देन यू शुड रियली लव देम। लव योर ग्रैंडपेरेंट्स एज दे विल ऑलवेज लव यू। सिर्फ हमारे पेरेंट्स का ही ड्यूटी नहीं होता है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स का ख्याल रखना, क्योंकि वो बड़े हैं।
हम छोटे हैं, आप छोटे हो, आपको भी अपना किरदार निभाना चाहिए, आपको भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, बिकॉज यू नो दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। कभी कभार वो तुम्हें बचाते भी हैं मम्मी पापा से डांट खाने से, है ना? आपको अपना मनमानी करने देते हैं, आप अपना बचपना करते हो उनके सामने, वो सब देखते हैं, सुनते हैं, सहते हैं। हमें भी उनको बहुत प्यार करना चाहिए। विथ एज हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ओल्ड होते जाते हैं, बीमारियां आती हैं, लेकिन तब हमें उनका साथ छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए। हम पहले भी जैसे प्यार करते थे तब भी उतना ही प्यार दिखाना चाहिए, उनका सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तब जाके वील ऑल्सो बी द बेस्ट ग्रैंड चाइल्ड। ओके एंड स्टूडेंट्स, डू यू नो हमारे ईयर में एक बार ग्रैंड पेरेंट्स डे भी सेलिब्रेट होता है। बट डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ सिंगल डे टू लव आवर ग्रैंड पेरेंट्स, टू शो लव टू देम, टू केयर अबाउट देम? कोई एक दिन तो नहीं होता ना ग्रैंड पेरेंट्स के लिए और बाकी दिन उनसे झगड़ा करो, लड़ाई करो, ऐसा थोड़ी होता है। वी शुड ऑलवेज एवरी डे एक्सप्रेस आवर लव टू देम। हियर्स अ शॉर्ट पोएम, अ शॉर्ट सॉन्ग फॉर यू, लिसन एंड एंजॉय। I hope you liked it. Now let's come to the homework section. I'll be discussing a few of the questions and the rest will be your homework. You'll be doing your homework for question number 2, 5 and 6. Okay? I'm discussing the rest. Okay, so question number 1. What was wrong with Meera's grandfather? Meera's grandfather was ill. He was having fever. Question number 3. What did Meera do when grandpa refused to have breakfast? मीरा ने क्या किया जब उसके दादाजी ने मना कर दिया ब्रेकफास्ट खाने से? मीरा सर्व द सूप बाय हरसेल्फ टू हर ग्रैंडपा हु रिफ्यूज्ड टू ईट द ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड मीरा टेक केयर ऑफ हर ग्रैंडपा? उसने कैसा ख्याल रखा? मीरा फेड हर ग्रैंडपा, गेव हिम हिज मेडिसिन, रेड द न्यूज़पेपर टू हिम एंड sang him a sweet lullaby when he was not well. मीरा ने मेडिसिन दिया, खिलाया अपने हाथों से, न्यूज़पेपर पढ़ दी, फिर एक लोरी गा के सुनाई। क्वेश्चन नंबर 7. Why did grandpa have tears in his eyes after reading the card? Grandpa had tears in his eyes because he realized Meera's immense love for him. उन्हें महसूस हुआ कि मीरा ने कितने दिल से लिखा है, कितने प्यार से बनाया है। उसका प्यार देख के उनके आंखों में आंसू आ गया। Okay students, so take care of yourself, love your grandparents, keep them safe and healthy. Thank you. Do your homework, okay?